Good afternoon, everyone. A very warm welcome to our respected speaker, faculty members, and all the participants joining us today. I am Siddesh Murkute, MTTS chapter head of IEEE SISGST, and I will be your host for today's webinar. Before we begin, IEEE SISGST is a student-led technical community that promotes learning, innovation, and professional growth through workshops, webinars, competitions, and various technical events. It is now my privilege to introduce the esteemed speaker for today's session, Mr. Sumit Singh. Mr. Sumit Singh is an assistant professor at Cashcroft College. He has extensive knowledge in electronics, embedded systems, and the Internet of Things, and is passionate about helping students understand emerging technologies through practical learning and real-world applications. We are delighted to have him with us today, and I'm sure his insights will be valuable for everyone attending this session. Today's webinar is titled Bridging the Gap, Electronics to IoT. In this session, Mr. Sumit Singh will cover the fundamentals of electronics, the core components of IoT, such as sensors, controllers, and communication technologies, real-world IoT applications, and the career opportunities and skill needed to succeed in this field. Whether you are just starting or already explored IoT, this session will offer valuable insights. Without taking much of your time, I would now like to invite Mr. Sumit Singh to begin today's session. Over to you, sir. Thank you, Siddesh, for the wonderful introduction. Hello, everyone. I'm Sumit Singh, and today's webinar is basically bridging the gap between electronics and IoT. So basically, in this webinar, I will see to it what is the electronics, and then how it works towards the IoT. It's a very basic webinar, okay? Like what are the basic types of electronics? What is electronics? This is all things we'll cover in this session. All right. I'm audible to everyone. So Yes, your sir. voice is very low. I think there's some network issue. Okay. Okay. Just a minute. Just a minute. Network issue. What about now? Am I audible to everyone? Yes, sir, it's Yes, much sir. better. Yes, sir. Okay. All right. So we will start now. So I will share my screen first. Just let me know if it is visible to everyone or not. Just a minute. Okay. So my screen is visible to everyone. Yes, sir. All right. Okay. So we will start now. So very first thing, what is electronics? I have asked a question, that is, we will first understand what we will know from the earlier sessions, like you have done in your class as well. So what is electronics? Electronics, क्या हो सकता है इसका definition बता anyone? What is electronics? So electronics is a branch of what? Anyone? It is a branch of science and engineering both. So maybe you all have earlier studied in class 10th or 12th, that is a semiconductor subject as well. So that is also the part of electronic. So we can say that electronics is the part of science and engineering both. And engineering as well, like your subject that is IoT, or there are many more subjects, electrical engineer, power electronics. These are all the subjects come under the electronics. Okay. Now there are two types of electronics. What are the types of electronics? Two types of electronics: digital electronics and the analog electronics. Just mention once again, am I audible and clear to you all? Yes, sir, you're audible and clear. Okay. So there are two types of electronics. The very first one is the digital electronics, which consists of zeros and one. It means it is discrete in nature. The signals which carries by the digital electronics is the discrete in nature, and it derives from digital quantities. Okay. For example, digital electronics derive from the digital quantity. Analog electronics derive from the analog quantities. All right. Now, what are the digital quantities and the analog quantities? If I am talking about the digital quantity means countable in nature. For example, how many students are sitting in the class? 20 students, countable in nature, isn't it? But if I'm talking about the analog quantities is nothing but the uncountable, like milk, water, and so basically the word here, that is digital electronics and the analog electronics, ये ऐसे ही कहीं से derive नहीं हुआ, it is derived from the your surrounding only. आपके surrounding से ये derive हुआ है. This is the digital electronics, this is the analog electronics, है ना? This is the analog quantity, digital quantity. From there only we have derived that digital electronics and the analog electronics. So digital means it consists of discrete signals. For example, display which consists of discrete signal, right? वहां पर कोई task या तो हो सकता है या तो वो नहीं हो सकता है ना, in the form of zeros and one. But what about the audio and video? What about the audio or the radio? That is continuous in nature. It means it is analog electronics. Audio, is it visible to you all? No. Audio is not visible to you all, right?
ऑडियो बस आप सुन सकते हो, isn't it? रेडियो भी आप बस सुन सकते हो. It means it consists of what? Analog electronics, that is continuous signal. Did you all understand what is electronics? First of all, electronics is the branch of science and engineering which deals with the flow of electron. Now one more concept is coming over here, that is the flow of electron. जो हमारा करंट है वो कहां से कहां फ्लो करता है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, isn't it? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं कभी बोलते हैं उसको? हम उसे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, राइट? और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है. आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. ओके, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट कि करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज ओनली रीजन. ओके, so this Yes, is sir. about your electronics. This is about your electronics and the types of electronics. So electronics, it is a branch of science and engineering which deals with the flow of electron in some circuit. Okay, then types of electronics: digital electronics and the analog electronics. Digital electronics means what? That is, it consists of discrete signal. Just a minute, you can see here. You can see here. So digital electronics works with the binary signals, that is 0 and 1, highly accurate and easy to store. सबसे बेसिक जो डिजिटल कंपोनेंट है that is your switch. स्विच या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है. ऑन हो गया इट मींस क्लोज सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 1. ऑन हो गया मतलब 1, ऑफ हो गया इट मींस 0. सो इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, स्मार्ट डिवाइसेस एज वेल. एग्जांपल्स के यहाँ पे एग्जांपल्स है, जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, कैलकुलेटर है, आर्डिनो है, एक्सेट्रा. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन सी हियर इट वर्क्स विद अ कंटीन्यूअस सिग्नल. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्पीकिंग कंटीन्यूअसली समवेयर, मेरा जो वॉइस है, जो पिच लेंथ है, वो कहीं पे हाई होगा, कहीं पे लो होगा, है ना? तो सिग्नल चेंजेस स्मूथली विद टाइम, isn't it? It is used in audio and radio circuits. Example, radio हो गया, माइक्रोफोन है, ऑडियो है, एम्पलीफायर, एंड देन एनालॉग थर्मोमीटर. जहां भी आपको कोई भी डेटा एक्वायर करना है, कंटिन्यूअसली डेटा एक्वायर करना है, तो वहां जो रोल आएगा दैट इज ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. You can see the definition of electronics over here, that is, electronics is the branch of what? Science and engineering that studies electrical circuits and electronic devices used to control the flow of electrons. You can see here, that is used to control the flow of electrons for the useful task. In simple meaning, it is written over here, that is controlling electricity. Daily life examples: smartphone, touch, display, speaker, and processor work using circuits. Televisions में receiving signals, processes video slash audio, and display outputs. So this is about your electronics and the types of electronics. Am I clear to everyone? Yes, sir. Okay, moving further. So now, after the electronics, we are going to discuss about the embedded system. Now, what is the embedded system? Embedded system, it is the combination of what? Software and hardware. क्या होता है embedded system? It is the combination of software and hardware, where software is embedded. Software is embedded into what? Hardware devices, hardware components. Okay, जो software रहता है वो होता है, वो basically embed किया करता है in a hardware device, and which leads to a specific task, which is used to perform a specific task or a set of a task. Now, what is the meaning of a specific task and a set of a task? If I will give an example, for example, microwave oven. What is the use of microwave oven? Basically, आप खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं ना. What about the washing machine? It controls what? That is the wash cycles. वो बेसिकली वॉशिंग के लिए भी यूज होता है और स्पिनिंग के लिए भी आप यूज करते हो. इट मींस वहां पे देखो दो आ गए है ना, वहां पे एक बार में दो टास्क परफॉर्म हो रहा है. इट मींस सेट ऑफ अ टास्क. सो वी कैन से दैट embedded system, okay, embedded system is the combination of software and hardware, where software is embedded into hardware, which leads to a specific task or set of a specific task. Sorry, or set of a task. You can say that. Okay. इसे कुछ characteristics दिए हुए, that is the dedicated function, small size, क्योंकि ये केवल specific task परफॉर्म कर रहा है. It will be the low power consumption, right? Fast response because एक single task या फिर set of a task परफॉर्म कर रहा है, and reliable operation. This is the only reason we have used the embedded devices in the hard real-time operating systems. Now, what is the hard real-time operating system and the soft real-time operating system? This is also another topic. Okay. Now we'll move further. Now, basics of embedded system, like how it works. So basically, it acquires the data using sensor from our environment, है ना? So you can see here that this is the flow of acquiring the data and performing. So over here you can see that sensor क्या होता है? Sensor is a monitoring device. Always remember, sensor and actuator. Sensor is a monitoring device, actuator is a controlling device. All right. For example, कैमरा क्या कर सकता है? कैमरा बस जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स है सराउंडिंग में उनको ऑब्जर्व कर सकता है, राइट? उनको रिकॉर्ड कर सकता है, राइट? कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा? इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, है ना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में वो रिकॉर्ड करेगा. व्हाट अबाउट द एक्टिवेटर? एक्टिवेटर उस सिग्नल को क्या करता है? बेसिकली कन्वर्ट करता है ना? क्या करता है? उसको सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इन सम फिजिकल मोशन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है? देखो, अभी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है. केवल आपको कंपोनेंट्स नहीं समझना है, उसके पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझना है. यहाँ पर बेसिक लेक्चर इसलिए बोला गया है कि उसकी बेसिक नीड क्या है. बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. तो अगर सेंसर देखा जाए तो सेंसर क्या है? एक ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसिंग? ट्रांसड्यूसिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, व्हेन एनर्जी कन्वर्ट्स या फिर ट्रांसफॉर्म, व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज नोन एज अ, दैट डिवाइस इज नोन एज अ ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस.
Okay, so sensor is converting energy from one form to another form. Like physically, everybody is sitting in the class. I'm giving you an example. Physically, everybody is sitting in the class. A camera is installed. Okay, camera is recording the data in the form of what? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो जो फिजिकल एस्पेक्ट था, जो लोग बैठे थे क्लास में, जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना. तो जो फिजिकल डेटा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इट मींस जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस. सेम गोस टू द एक्चुएटर. सेम गोस टू द एक्चुएटर. जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा. नाउ इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सम फिजिकल मोशन. फॉर एग्जांपल, आपने बाइक ऑन किया, ओके, और फिर आपने एक्सेलरेटर लिया, इजंट इट. आपने बाइक ऑन किया, एक्सेलरेटर लिया, तो जो एक्सेलरेटर वाला पार्ट है, जो भी डिवाइस कंट्रोलिंग होती है वो आपका एक्चुएटर होता है. रिमेंबर दिस पार्ट एवरीवन. जो भी डिवाइस फंक्शनिंग होती है ना, फंक्शनिंग होती है, जो कंट्रोलिंग होती है, वो आपका डिवाइस क्या होता है? एक्चुएटर होता है. आपने बाइक स्टार्ट किया, आपने एक्सेलरेटर लिया बेसिकली, इजंट इट. जब आपने एक्सेलरेटर लिया तो वहां पे क्या हो रहा है? बाइक स्टार्ट किया तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है, इजंट इट, टू द एक्सेलरेटर. और जैसे आपने एक्सेलरेट किया, बाइक क्या करेगी? मूव करेगी. तो क्या हो गया? वो फिजिकल मोशन हो गया, है ना. तो एक्चुएटर क्या करता है? सेंसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्वायर करता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट्स इट इनटू द फिजिकल मोशन. क्लियर इतना एवरीवन कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेंसर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुएटर? Yes, sir. Just a minute. Okay. So example भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे. You can see that automatic gate detects a vehicle, isn't it? Then controller checks input and motor opens the gate, है ना. So automatically कोई vehicle बाहर के खड़ी हो गई, then controller क्या चेक करेगा? इनपुट की क्या बाहर क्या आया है ना. Then according to that motor क्या करेगा? मतलब जो मैकेनिकल पार्ट है वो कौन परफॉर्म करता है? मोटर. तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेंसर्स के. There are so many examples for the sensor. Environment में if any physical aspect is there in our environment basically, so उसको मेजर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सेंसर है. ओके, अपने एनवायरमेंट में कोई भी अगर फिजिकल एस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर. टेम्परेचर भी हमारे पास कौन सा है? टेम्परेचर सेंसर है ना. जनरली हम LM35 यूज करते हैं. आल्सो DST11, DST22 जो कि टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी सेंसर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, नाउ गैस के लिए कौन सा सेंसर है? गैस सेंसर है हमारे पास. ओके, डिस्टेंस को मेजर करना, डिस्टेंस टू मेजर डिस्टेंस विच सेंसर वी हैव? दैट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर. ओके, अल्ट्रासोनिक सेंसर हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं. ओके, और जनरली हम जो मॉड्यूल यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर में, दैट इज HCSR04 मॉड्यूल. जिसमें क्या होता है? ट्रिगर पिन होता है, इको पिन होता है, VCC एंड ग्राउंड. 4 पिन आर देयर. जनरली हम ये जो भी मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं रोबोटिक्स वगैरह में हम ये यूज करते हैं. ओके, ultrasonic sensor. And the one more, that is infrared sensor. Now can anyone tell me that is what is the difference between ultrasonic sensor and the infrared sensor? That is, ultrasonic sensor is used to measure the distance, whereas infrared sensor is used to detect the object. Okay, so we can measure the distance using ultrasonic sensor. Okay, and infrared sensor is not able to measure the distance. It is only able to detect the object. Okay, now in many use cases we have used the infrared sensor. Like you can say that in mall as well, when you get into a mall, जहाँ पे स्मार्ट डोर होता है, ऑटोमेटिकली जो ओपन होता है, वहां पर इंफ्रारेड सेंसर ही होता है. ओके, जो डिटेक्ट करता है. ऑल्सो इन दी स्मार्ट वॉशरूम एज वेल. आप वॉशरूम में जब जाते हो तो ऑटोमेटिकली लाइट और फैन जो भी रहता है वो ऑन होता है ना. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ इंफ्रारेड मोशन सेंसर. उसको हम मोशन सेंसर भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड द इंफ्रारेड सेंसर. मूविंग फर्दर, तो सेंसर्स में सबसे जो बेसिक सेंसर होता है, कोई मुझे बताएगा एकदम जो बेसिक जो स्टार्ट में हम स्टडी करते हैं, ऑलमोस्ट वो हर जगह पे यूज होता है. दैट इज योर LED. कौन सा होता है? दैट इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड. व्हाट इज डायोड? एनीबॉडी कैन आंसर. डायोड क्या होता है? So the diode is a semiconductor device that allows electrical. डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. ओके, It is so the kind of a diode is a valve. current. It Sorry, it is allows a kind of current a valve to flow in one direction. It allows Hmm. current to flow in one तो बेसिकली वो direction. यूनिडायरेक्शनल, बेसिकली इसमें जो करंट फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना. यूनिडायरेक्शनल होता है डायोड में जो करंट फ्लो होता है. Now if I'm talking about a LED, the full form of LED is a light emitting diode. Now light emitting diode, you just let me know कि यहाँ पे जो valve है वो कौन से बायसिंग में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस इन LED? LED is forward bias or reverse bias? It is a forward bias. Okay, Forward bias. how? It is a forward bias. Okay, but if I'm talking about a solar panel, that is a reverse bias, isn't it? LED क्या करता है? बेसिकली लाइट को एमिट करता है ना. LED यूज्ड टू एमिट द लाइट, whereas जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, isn't it? फॉरवर्ड बायस को समझने के लिए सबसे मैं बेसिक बता रहा हूं आपको कि फॉर एग्जांपल LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे ही जाता है, एंड LED का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे ही आप कनेक्ट करते हो, है ना. So positive to positive, negative to negative, that is your forward bias. But if you reverse that, positive to negative and negative to positive, it will be the reverse bias. Okay? So diode basically क्या होता है? जहाँ पे करंट वन वे फ्लो होता है, ठीक है, वहाँ पे it works like a valve, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया. ओके, तो सबसे जो बेसिक होता है आपका सेंसर होता है, दैट इज योर LED, लाइट एमिटिंग डायोड. इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यू ऑल नो दैट, है ना. एंड देयर आर
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एज वेल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एलईडी है उसमें जो ब्लू कलर है उसको बनाने के लिए बहुत टाइम गया था, लाइक रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर ये इजिली कोप अप हो गया था, बट ब्लू कलर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम गया था। ओके, मूविंग फर्दर, एलईडी के बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट इज एलडीआर। स्लाइड्स में है नहीं है? ओके, एलईडी के बाद क्या, दैट इज एलडीआर। एलडीआर इज आल्सो अ रिवर्स बायस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ओके, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वो क्या करता है, रजिस्ट करता है ना, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है, वो रजिस्ट करता है बेसिकली। ओके, after the LDR, that is there is a temperature sensor and a humidity sensor मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, that is temperature में LM35 मेरे पास, या फिर DST11 या फिर DST22 है ना, humidity sensor as a humidity sensor also there. After that there is also one more sensor, that is the color sensor. Okay, so there are many more sensors, you can say that surrounding में जो भी आपको मेजर करना है, to measure that part there is a sensor. Okay, now what about the actuator? Actuator का बेस्ट एग्जांपल है स्विच एंड मोटर। स्विच भी क्या है, एक एक्टिवेटर ही है, बट उसको हम बेसिकली मैनुअली ज्यादा यूज करते हैं ना, हर आपके क्लासरूम में या फिर ऐसे घर में लगा रहेगा स्विच, है ना, जो कि बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, 0 और 1, दैट्स इट। तो स्विच इज आल्सो एक्टिवेटर। कोई भी डिवाइस जहां पे करंट फ्लो हो रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है, लाइक कैमरा मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल कैमरा का मैंने ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वहां पे इंस्टॉल किया है कैमरा, तो कैमरा क्या, ट्रैफिक सिग्नल जब मैंने इंस्टॉल किया तो जो कैमरास है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कार जो मूव कर रही है, कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज कैमरा इज जस्ट अ मॉनिटरिंग डिवाइस, सेंसर इज जस्ट अ मॉनिटरिंग डिवाइस, वेयर एज एक्टिवेटर इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस। इजंट इट? एक्टिवेटर क्या होता है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, जैसे मोटर मैंने बताया, एक्सीलरेटर बताया, एंटी लॉक ब्रेक्स हो गया, है ना, जो पैराशूट में बेसिकली पैराशूट कंट्रोलर होता है, या फिर जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं बेसिकली, है ना, वहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देयर इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो किसके अंडर होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है बेसिकली वो जो रियलिस्टिक आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल जो मिसाइल लॉन्च हो रहा है वो क्या है, रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक इन नेचर, है ना। एंटी लॉक ब्रेक्स, आप कार में ब्रेक लगा रहे हो बेसिकली वो भी क्या है, रियलिस्टिक है। एक्सीलरेटर दे रहे हो वो भी क्या है, दैट इज रियलिस्टिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी नॉट हार्ड, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना बोलते हम क्या कहते हैं, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, I mean. So we have done with the sensor part. Okay, in actuator now basically in our projects we use 3 types of motors, that is DC motor, stepper motor and servo motor. Can anybody just give a short definition of these motors? What is the DC motor, what is the stepper motor, or anybody can mention that what is the difference between stepper motor and servo motor? सर सर्वो मोटर एक स्पेसिफिक एंगल तक ही रोटेट करती है और डीसी मोटर पूरा 360 कर सकती है रोटेशन। सर्वो मोटर का स्पेसिफिक एंगल क्या है बेटा, that is 0 to 180 degree. Very good. So servo motor can rotate from 0 to 180 degree. Now into that as well there are 2 types of rotation. Okay, there is a positional rotation and there is a continuous rotation. In servo motor there are 2 types of rotation, that is continuous rotation and a positional rotation. Now what is the meaning of positional rotation and the continuous rotation? Positional rotation मतलब होता है बेसिकली कि वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करेगा अकॉर्डिंग टू यू। आपने जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीसी मोटर होता है वो अनप्रोग्रामेबल, आपको नॉन प्रोग्रामेबल होता है डीसी मोटर, वेयर एज योर स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर इज प्रोग्रामेबल इन नेचर। Okay, stepper motor is programmable in nature, servo motor is also programmable in nature. Okay, and DC motor is non-programmable. Remember this part. This is a very basic difference between these all motors. Okay, now if I am talking about the stepper motor, it rotates in stepwise manner. कैसे rotate करता है stepper motor? In a stepwise manner. Okay, now if it rotates in stepwise manner, it will form an angle, है ना। अगर वो एक 30 अगर वो एक स्टेप रोटेट करेगा या फिर आप ही अगर आप एक स्टेप मूव करोगे तो आप एंगल फॉर्म करोगे, राइट। कोई चीज अगर सर्कुलर फॉर्म में कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है तो वो एक एंगल नहीं फॉर्म करेगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट पार्ट, राइट। इवन दो इन स्टेपर मोटर एज वेल, अगर आपने जो सा डिले है बहुत कम दे दिया तो यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट कि वो कितने स्टेप मतलब वो स्टेप में रोटेट कर रहा है कि कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। ओके, सो स्टेपर मोटर रोटेट्स इन स्टेपवाइज मैनर एंड इट रोटेट्स ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड द फुल रोटेशन इज दैट इज 0 to 360 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा है तो एक सिंगल रोटेशन को कितने स्टेप्स लगेंगे? एनीबॉडी कैन आंसर? इफ इट रोटेट्स फ्रॉम 0 to 360 degree and the angle is 30 degree, what will be the step? 12 12 steps, है ना। वेरी बेसिक क्वेश्चन। 12 steps हो गया ना, 15 degree 24 steps. Okay, moving further. Now if I'm so basically the servo motor is basically rotates from 0 to 180 degree. It rotates from 0 to 180 degree. और इसमें भी हाइब्रिड मोटर्स आते हैं सर्वो मोटर में। ओके, देयर इज अ पोजिशनल मोटर और अ कंटीन्यूअस रोटेशन और अ पोजिशनल रोटेशन। पोजिशनल रोटेशन मींस व्हाट? इट रोटेट्स सम एट पर्टिकुलर एंगल, किसी को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करेगा। ओके, वेयर एज जो कंटीन्यूअस रोटेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपने वेरी बेसिक एग्जांपल इज दैट वॉल फैन आपने देखा होगा। वॉल फैन में यू कैन ऑब्जर्व दैट कि वो फ्रंट में बस रोटेट होता है, उसको पीछे रोटेट करने की जरूरत है भी नहीं बिकॉज़ वो वॉल पे लगा हुआ है ना। सो इट कैन रोटेट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ओनली। आप उसको और भी कम कर सकते हो, है ना। और उसका जो रोटेशन रहता है यू कैन ऑब्जर्व दैट किसी फैन में कंटीन्यूअस होता है और किसी फैन में वो भी ऐसे ब्रेक ले लेके रोटेट करता है। तो जहां पे अगर वो ब्रेक ले लेके रोटेट कर रहा है दैट इज अ पोजिशनल रोटेशन, और वो जहां पे पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है 0 to 180 डिग्री कंटीन्यूअसली, दैट इज अ कंटीन्यूअस रोटेशन। क्लियर इतना एवरीवन अबाउट सेंसर एंड एक्टिवेटर्स? ओके, यस सर। नाउ मूविंग फर्दर,
we'll see to it our क्या इसमें स्लाइड में. ओके, सो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एनीवन मुझे कोई डेफिनेशन दे सकता है प्रोसेसर का यहाँ पे कि होता क्या है एग्जैक्टली? बिना प्रोसेसर चेक किए हम तो मोबाइल फोन भी नहीं लेते हैं और ना ही लैपटॉप लेते हैं, है ना? मतलब जो दिया हुआ इनपुट है उसने का स्पीड है या फिर आउटपुट मिलने के लिए जो काम करता है दैट इज प्रोसेसर. स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इजंट इट? आप वही चेक करते हो उसके जो लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर जो भी उसके ऑपरेशन है बेसिकली वो क्या है एग्जैक्टली. स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो भी आपके सिस्टम का है दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? वो कितने स्पीड से वर्क कर रहा है ना? उसमें क्लॉक स्पीड क्या है उसका, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं उसके अंदर बिफोर बाइंग अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन एज वेल. ओके, नाउ प्रोसेसर इज अ डिपेंडेंट डिवाइस. व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट? प्रोसेसर डिपेंडेंट क्यों होता है? यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ i7 प्रोसेसर. व्हाट इफ एक i7 प्रोसेसर चिप होता है, आपको मैं ऐसे हाथ में रख दिया, वो किसी यूज में है? नो. एक i7 प्रोसेसर मैंने से लिया, दिस इज i7 प्रोसेसर, दिस इज वेरी कॉस्टली, 20,000 15,000 व्हाटएवर इज देयर, एंड आई गिव इट टू यू, यू टेक इट. वो किसी भी यूज में नहीं है until and unless we will connect the IO ports, counters, oscillators, ये सारी चीजें आपको एक्सटर्नली उस पर कनेक्ट करनी पड़ेंगी. जब भी मैं प्रोसेसर और कंट्रोलर की बात करूंगा, अगर आपको कोई भी एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट करो अपने सीपीयू से, और जब आप सीपीयू से कनेक्ट करोगे तो वहां आपको आपका जो कीबोर्ड है, माउस है ना, ये सारी चीजें आपको साइड रखना है. कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर आप भूल जाओ. प्रोसेसर की मैंने बात की या फिर कंट्रोलर की बात की, तो आपको बस सीपीयू ध्यान में रखना है ना. आपकी जो सीपीयू में जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर प्रोसेसर या फिर जो भी चीजें पूरा इंटीग्रेट किया गया है. नाउ सीपीयू के जो पोर्ट्स है अलग अलग, दैट इज योर आईओ पोर्ट्स हो गए, है ना. मदरबोर्ड हो गया जिसपे आपका काउंटर, ऑसिलेटर या फिर मेमोरी जो हो गई आपकी अलग से वहां पे कनेक्ट की गई है, इंटरनल मेमोरी, रैम हो गया ना. ये सारी चीजें आपने एक्सटर्नली वहां पर कनेक्ट करी है. दैट्स व्हाई अ प्रोसेसर इज नोन एज अ डिपेंडेंट डिवाइस. The processor is a dependent device. You can see here, a processor is an electronic chip that performs calculation, executes instructions, and control operations in a computer system. कौन से ऑपरेशन? That is arithmetic and logical operations, program executions, memory and device control. You can see that it requires what? इसने broadly mention कर दिया है, RAM, ROM, IO ports. There is a counter, there is an oscillator, है ना. So many things are there. Then example में you can see that there are so many processors: Intel Core i3, i5, i7, Ryzen है, Qualcomm है, MediaTek Dimensity है, ARM Cortex processor है ना. These all things are these all examples of that is processor. Why it is known as a microprocessor? Because it is very small in size. So basically, this is the brain of your system, है ना. आपका जो CPU का brain यही होता है. So what is the difference between processor and a controller? Anyone? बताओ क्या हो सकता है डिफरेंस? ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी क्लास में भी हुए होंगे, है ना. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IoT हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट लाना है तो पहले आपको बेसिक्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. लाइक सब्जेक्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ, क्यों है ये सब्जेक्ट, ये इतना बेसिक्स हमें क्यों करना है. जो भी ऑपरेशंस होते हैं आपके फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, वो 0 और 1 में ही हो रहे हैं ऑपरेशन. या तो वो है या तो वो नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर, ओके, गिवन बाय एन IITian कि या तो वो है या तो वो नहीं है. एनी एग्जांपल यू कैन टेक इट. Yeah, answer. Yes, Microcontroller is basically a mini computer, like a small computer chip, and the processor is just an execution unit which needs external parts to get work with. Correct. But a controller, we can't say it as a computer because previously we have discussed that. You know what is the SoC, system on chip? Anyone? So do you all done? Do you all anybody have done with the Raspberry Pi? Anyone? Anyone perform any practical or any kind of project as well on the Raspberry Pi? Anyone? Okay, I will continue now. So Raspberry Pi is a system on chip. So according to our requirement basically, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसमें हमने बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है उसको इंटीग्रेट किया है. और जनरली जो रास्पबेरी पाई होता है उसको हम मिनी सीपीयू कहते हैं. क्या कहते हैं? मिनी सीपीयू. हम उसको कंट्रोलर कभी नहीं कहते हैं. उसका नाम हमने क्या दिया है? एसओसी, सिस्टम ऑन चिप. अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसमें हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किया है. नाउ बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा. जो मैं आपको कह रहा था कि एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड डिवाइस है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया कि माइक्रो ओवन में एम्बेडेड सिस्टम में डिवाइस है, या फिर आपके जो वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड सिस्टम में डिवाइस है, वो एक स्पेसिफिक टास्क और अ सेट ऑफ अ टास्क उतना ही बस परफॉर्म कर सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस सिस्टम एंड अ embedded system. Now if I am talking about a general purpose system is generally trending in our market. For example, mobile phone is a general purpose system. Okay, now computer is also a general purpose system, laptop is also a general purpose system. If I am talking about embedded devices, ये आपको बहुत कहते हैं ना कि इसका जो मार्केटिंग रहेगा थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, है ना. या फिर आपको अगर देखेगा कि मार्केटिंग उसका तो आपको बस ये लगेगा कि ये डिवाइस ऐसे यूज हो रहा है. फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन, अब आपको ये नहीं पता है कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सा कंट्रोलर यूज किया गया है, या फिर वॉशिंग मशीन जो है उसमें कौन सा कंट्रोलर हमने यूज किया है ना. गेटिंग और नॉट, तो वो बहुत सारे ट्रेंडिंग नहीं रहेगा मार्केट में, बट वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा. दैट इज योर कंट्रोलर. Okay, which comes under the embedded devices. So generally इसको हम ऐसे बाइफरकेट करते हैं. Okay, now general purpose जो सिस्टम होता है बेसिकली इट इज ट्रेंडिंग इन नेचर एंड मल्टीटास्किंग होता है. लाइक आपके फोन में आप बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे सेंसर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं ना, आप उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो, है ना. नाउ इन योर लैपटॉप एज वेल आप बहुत सारे टैब्स ओपन कर सकते हो, एक साथ में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो और उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो. इजंट इट? बट अगर मैं आर्डिनो की बात करूं, इजंट इट, आर्डिनो आपने यूज किया होगा किसी ने, मतलब उसमें आपने एक बेसिक प्रैक्टिकल तो आपने परफॉर्म किया होगा किसी ने.
जो आर्डिनो होता है वो क्या होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, मतलब वो प्रोग्राम को 1 बाय 1 ही बस एग्जीक्यूट करता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आर्डिनो और रास्पबेरी पाई थोड़ी देर बाद हम करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है रास्पबेरी पाई में और आर्डिनो में, ठीक है। अभी के लिए ध्यान में रखो ये सारे प्रोसेसर्स आपको, दैट इज इंटेल कोर, राइजन, क्वालकॉम, ओके। नाउ वन मोर पॉइंट, सॉफ्टवेयर कंपनीज सबको पता है, टीसीएस है, विप्रो है ना, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज। व्हाट अबाउट द हार्डवेयर कंपनीज, एनीबॉडी जस्ट लेट मी नो। सॉफ्टवेयर कंपनी अगर मैं आपको क्वेश्चन करना, एनवीडिया, एनीथिंग एल्स, Intel. Qualcomm. इंटेल, क्वालकॉम। तो बेसिकली ये आपको बेसिकली यहाँ पे आपको स्लाइड में विजिबल हो गया है ना, तो आपको ऐसे क्लिक होगा। लेकिन अगर मैं वही सॉफ्टवेयर की बात करूंगा, जैसे आप बहुत सारे मुझे कंपनीज बता दोगे अभी के अभी, सो ये आपके पास एक ये टास्क रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वेबिनार, आपको बाद में सर्च करना है कि व्हाट आर द कौन से हार्डवेयर कंपनीज है ना मार्केट में। देयर आर सो मेनी, सैमसंग इज देयर आल्सो, डेल इज देयर आल्सो, सो मेनी कंपनीज आर देयर, है ना। तो आपको हार्डवेयर कंपनीज पर भी फोकस करना है, ध्यान रखना है आपको। हार्डवेयर कंपनीज का मार्केट अभी आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली है पहले से ही, बट और भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली है। और हार्डवेयर में बेसिकली जो ग्रोथ होता है ना, जो ग्रोथ ऐसे लगता है कि मतलब क्या ग्रोथ है हार्डवेयर में, मतलब या फिर इतना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ना, आप यू नो दैट कि हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। जब आप एक प्रोजेक्ट भी बनाते हो हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई, तो वो ऑब्वियसली कोई कॉस्ट देता है कि हाँ इतना अमाउंट लग रहा है इसमें। एक बार प्रोजेक्ट बन गया, वो किसी यूज में आ गया, आपका खुद ब्रेन काम करता है कि वो फिर से रीयूज आप कैसे कर सकते हो। अगर ये ब्रेन काम कर रहा है कि आप वो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें जो भी अपने कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए हैं, आपको आप उससे फिर से कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो। इट मींस आपके पास वो एबिलिटी है कि अगर कहीं पे कोई हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आउटडेटेड हो रहा है ना, तो उसको बेसिकली आप कैसे फिर से रिवर्ट बैक कर सकते हो। या फिर व्हाट आई कैन से, फॉर एग्जांपल वीजीए केबल, यू ऑल नो दैट व्हाट इज द वीजीए केबल, जो आपको अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हो। नाउ वीजीए केबल क्या है मार्केट में, क्या हमारे पास एचडीएमआई केबल, तो धीरे धीरे जो वीजीए केबल है वो क्या हो रहा है, बेसिकली खत्म हो रहा है। डू यू ऑल नो दैट व्हाट इज द वीजीए केबल? It is. वीजीए केबल वी विल कनेक्ट फ्रॉम अ सीपीयू टू द मॉनिटर, यू नो ना। वीजीए केबल जो होता है बेटा, वो हम क्या करते हैं, हाँ सीपीयू टू मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब आप ऑब्जर्व करोगे जो न्यू पीसी आ रही है, तो न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, एचडीएमआई केबल्स है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई, एनीवन? फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, राइट। सो बेसिकली अभी आपको अभी ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा अबाउट द एचडीएमआई एंड द वीजीए, you are in doubt, but what if I ask you, you know that what is the what I can say, micro SD charging and you know, C type charging, you know, the C type charger, before the C type charger there is a micro charger is there, right? C type charging के पहले हमारे पास जो एक पिन आता था हमारे चार्जर में या फिर मोबाइल में, वो क्या रहता था, देखो माइक्रो चार्जिंग होता था ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस समय? माइक्रो चार्जिंग, Micro USB. करेक्ट मैं नाम ही भूल गया। तो माइक्रो यूएसबी है सी टाइप। अभी मैं आपको माइक्रो यूएसबी एंड सी टाइप, जैसे मैंने आपको बोला वीजीए केबल, तो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द वीजीए केबल विद द एचडीएमआई केबल। लेकिन जैसे मैं अगर आपको कह दूं कि सी टाइप या फिर माइक्रो यूएसबी केबल मैंने कह दिया आपको, तो आप इजीली कनेक्ट कर लोगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज़ यू आर यूजिंग इट, है ना, बिकॉज़ यू आर यूजिंग इट। माइक्रो यूएसबी आप पहले फोन में यूज करते थे, आपको पुराना फोन होगा, अरे ये दूसरा फोन है, इसमें तो सी टाइप यूज करना है ना। सो ये जो कंपोनेंट्स जो इवॉल्व हो रहा है ना, कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कॉर्ड्स कंपोनेंट, COTS, कॉर्ड्स, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। ये भी टाइमली इवॉल्व होता है। और देखो कभी ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन है तो दूसरा सी टाइप लग रहा है, सोनी का फोन है तो दूसरा सी टाइप लग रहा है, गेटिंग और नॉट। तो ये जो कॉस्ट कंपोनेंट है पहले से बहुत ज्यादा डिफाइंड होता है और अकॉर्डिंगली सेम साइज में बेसिकली आप इसको मैन्युफैक्चर करते हो। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बहुत ही मास लेवल पे होता है। जो भी प्रोडक्ट्स है, अगर मास लेवल प्रोडक्शन नहीं होगा बेसिकली तो लॉस होगा आपको। मास लेवल का प्रोडक्शन होगा तो ही आप उसको चीपर कॉस्ट में बेच भी सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि हमने माइक्रो यूएसबी से सी टाइप यूएसबी क्यों इवॉल्व किया, बिकॉज सी टाइप में बेसिकली डेटा ट्रांसफर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है ना। चार्जिंग लगाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे कौन सा साइड से लगाना है, गेटिंग और नॉट। इन द सेम वे जो वीजीए केबल है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको स्क्रू टाइट करना होता है, या फिर उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर वो बहुत इजीली खराब होता है ना। सो रिलेटिव दिस ऑल थिंग्स देयर कम्स इन अ रोल दैट इज योर एचडीएमआई केबल, ओके। सो वी हैव डन विद द प्रोसेसर, ओके। व्हाट इज द प्रोसेसर, देन वी हैव स्टार्टेड विद द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर मैंने ये डिस्कस किया अबाउट द आर्डिनो ऊनो, ओके। सो आर्डिनो इज जस्ट अ कंप्यूटिंग डिवाइस, यू कैन से दैट, जो कि सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। जनरल पर्पस सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम आपको समझना होगा। जनरल पर्पस में एग्जांपल मैं देता हूं, दैट इज मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। एम्बेडेड सिस्टम में दैट इज योर आर्डिनो, है ना। नोड एमसीयू आपने सुना होगा, दैट इज आल्सो अ एम्बेडेड सिस्टम एग्जांपल। मूविंग फर्दर, सो यू कैन सी दैट जो आपका कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर इज अ इंडिपेंडेंट डिवाइस। क्या होता है ये, इंडिपेंडेंट डिवाइस। तो कंट्रोलर इंडिपेंडेंट डिवाइस होता है बिकॉज इसके, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि प्रोसेसर इज अ डिपेंडेंट डिवाइस, तो उसके अंदर आपको सब कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता है। वेयर एज कंट्रोलर में ऑलरेडी सब कुछ इंटीग्रेटेड आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो सिंपली आप आर्डिनो ऊनो को विजुअलाइज करो। Visualize the Arduino Uno. In Arduino Uno, we have the I/O ports, and we have the external power supply as well. We have the pins as well. You can connect it any sensors, right? We have the communication ports as well over that. ADC and DAC converter is also there, and there's a transmitting and receiving data. So you all have done with the Arduino Uno. Anyone? Just response. Uno हुआ ही कि नहीं आपको Arduino Uno? नहीं हुआ, just mention it. No sir, no sir. No sir. Okay. No, sir. Okay. हो गया या नहीं हुआ है? ठीक है. I got the point.
देखो जो आर्डिनो उनो होता है उसमें जैसे मैंने डिस्कस किया ना आपसे स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इन द सेम वे आर्डिनो उनो में देखो यहाँ पे बेसिक से बेसिक पॉइंट जो है आगे जाके कनेक्ट होगा। अब आर्डिनो उनो एक एप्लीकेशन की तरह हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि एक एप्लीकेशन आपके मतलब मार्केट में एप्लीकेशन वो बेसिकली वो डिवाइस आ चुका है। अब आर्डिनो उनो में कुछ ऐसा बाहर से कोई पिंस वगैरह नहीं आ जाएंगे, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया था एनालॉग एंड डिजिटल, तो आर्डिनो उनो में डिजिटल पिंस होते हैं और एनालॉग पिंस होते हैं। देयर आर 14 डिजिटल पिंस फ्रॉम 0 to 13 एंड देयर आर 6 एनालॉग पिंस 0 to A5, ठीक है। ये आपके डिजिटल पिंस है और एनालॉग पिंस है, ओके। सो बेसिकली आपको कंट्रोल में ध्यान रखना है कि इट इज अ सिलिकॉन चिप व्हिच इज अ इंडिपेंडेंट डिवाइस, ये ध्यान रखना है। इनसाइड दैट देयर इज अ सीपीयू, रैम, फ्लैश मेमोरी है ना, आईओ पोर्ट्स, टाइमर्स, एडीसी और डीएसी कन्वर्टर, कम्युनिकेशन पोर्ट्स, एवरीथिंग इज देयर, ओके। सो माइक्रोकंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज़ सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स आर अवेलेबल इन वन चिप, एक सिंगल चिप में वो अवेलेबल होता है आपके लिए इन अ सिंगल चिप, ओके। नाउ लो पावर एंड लो कॉस्ट, गुड फॉर एम्बेडेड सिस्टम। यू कैन सी दैट यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया इट इज अ एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस। एग्जांपल क्या है आपका, दैट इज आर्डिनो उनो है, नोड एमसीयू, ESP32 है, पिक माइक्रोकंट्रोलर है ना, देन STM32। एक और कोई एग्जांपल देगा, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, फर्स्ट कंट्रोलर, एनीवन? यहाँ मेंशन नहीं हो कंट्रोलर। और 8051 ओके। सो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में अब वहां पे जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है। वहां पर जो मेमोरी में जो स्पेस होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। जो रैम होता है वो 128 बाइट्स होता है और जो रोम होता है वो 4 KB होता है। व्हिच वन इज बिगर, व्हिच वन इज लार्जर, 128 बाइट्स और 4 KB? एनीवन? बेटा ये बेसिकली क्या है, मेमोरीज, अबाउट द मेमोरीज आपको पता होना चाहिए। कौन सा बड़ा है बताओ? 4 KB ऑब्वियसली है ना, 4 KB means what, that is 40 बाइट, ठीक है। इतना इसमें आपको सोचना ही नहीं है बेसिकली। 128 बाइट्स ऑब्वियसली, और रैम है ना, आप अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो कि जो रैम है वो ऑब्वियसली कम होता है। आपके फोन में रैम कम होता है, लैपटॉप में भी रैम कम होता है, लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो लैपटॉप में है 16 GB रैम है और 1 TB क्या है स्टोरेज रहेगा, या फिर 512 क्या रहेगा स्टोरेज रहेगा, इजंट इट? ओके, वन मोर क्वेश्चन, 1 बाइट में हाउ मेनी बिट्स आर देयर? इन 1 बाइट हाउ मेनी बिट्स आर देयर? इतना आपको टाइम देना ही नहीं है। इट्स 8 बिट्स। व्हाट इज अ बिट? 8 bits, व्हाट इज अ बिट? smallest structural unit of the दैट इज 0 एंड 1, memory. राइट? Zero दैट and इज 0 एंड 1। सो जो बिट्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, या तो वो 0 हो सकते हैं या तो वो 1 हो सकते हैं, ओके। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं ना, अगर आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा स्टडी करने में, ओके। कि बिट्स क्या होता है, फिर 8 बिट्स के बाद से 1 बाइट कैसे आया, ओके। फिर 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स कैसे हुआ, इजंट इट? आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके फोन में कोई ऐसी फाइल आपने डिलीट करी है, डिलीट किया है, ओके, और वो 2B वहां पे लिखा रहेगा, 2B 3B, और आप फाइल को ओपन करने की कोशिश करना, ओपन नहीं होता है। 2 बाइट की फाइल, 2 बाइट की जो फाइल है वो ओपन नहीं होती है। इवन तो अगर कई बार ऐसे होता है कि 1 KB 2 KB की फाइल रहेगी वो ओपन नहीं होता है। लेकिन मैंने मेंशन किया कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो स्पेस होता है ना, जो इंटरनल मेमोरी होती है वो 4 KB होती है, और जो रैम होता है वो 128 बाइट होता है। इट मींस वहां पे जो इंटरनल स्टोरेज है, आपको 8051 पे प्रैक्टिकल हुआ है? 8051 पे ये बहुत ही आउटडेटेड है बट अभी तक नहीं हुआ है। ओके। 8051 जो है बहुत ही बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इस पे जनरली अभी कोई प्रैक्टिकल लेता भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर और जो अभी मार्केट में जो करंट में जो ट्रेंडिंग माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज आर्डिनो उनो, है ना। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो आई एम गोइंग टू give a brief introduction about the difference between 8051 controller and Arduino Uno. Now in 8051 controller, the memory space is that is 128 byte and 4 KB storage. Okay. Now यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज होता है, देयर इज असेंबली लैंग्वेज। नाउ इन Arduino Uno कौन सा लैंग्वेज हम यूज करते हैं? C और C++, यू कैन से दैट, है ना। C यूज करते हैं या फिर हम C++ यूज करते हैं। नाउ तो 8051 में हम जो प्रोग्रामिंग पार्ट परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कील करके एप्लीकेशन आता है, सिमुलेटर है हमारा कील, KEIL कील। कील से हम क्या करते हैं, कील में हम C प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि कन्वर्जेंस पता है आपको, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग कन्वर्जेंस की, आप बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। ये बेसिक्स पता है आपको। इट मींस व्हाट, अगर कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ये जो कन्वर्जेंस हो रहे हैं ना, आप समझ लो कि आपका जो कंप्यूटर है बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो उसको सीधा वो कौन सा लैंग्वेज कन्वर्ट करता है? आपके कंप्यूटर में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कौन सा है बताओ? बाइनरी है ना। आप कोई भी लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप परफॉर्म कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग पार्ट, उसको जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज दैट इज 0 एंड 1, मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स रहने दो, डीएससी का कोई क्वेश्चन रहने दो, कोई प्रोग्राम रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है। और इसीलिए आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का वो स्ट्रांग होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन दिस पॉइंट, कि प्रोसेसिंग यूनिट आपका स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? एकदम बेसिक सा एग्जांपल है बेसिकली, ठीक ना। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो सी प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूं, जो मैं 8051 कंपेयर कर रहा हूं, उसका रीजन ये है कि 8051 में हम सी 8051 में आपको प्रोग्राम जो फीड करना है, ओके, वो आप असेंबली लैंग्वेज में ही कर सकते हो, ओके, जो कि हेक्स फाइल होती है, हेक्स फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कील एप्लीकेशन एक होता है, एक एप्लीकेशन एक सिमुलेटर है जहां पे आप बेसिकली सी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करोगे, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आपने परफॉर्म किया है ना, या फिर चलो ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी के लिए आपने प्रोग्राम जो परफॉर्म किया, एंड देन प्रोग्राम परफॉर्म करने के बाद से आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे हेक्स फाइल में। हेक्स फाइल क्या होता है, उसका फॉर्मेटिंग क्या रहेगा, जो मैंने हेक्साडेसिमल बोला आपको, हेक्साडेसिमल वैल्यूज कहां से कहां तक होती है एनीवन?
वैल्यूज इन आवर हेक्साडेसिमल मेंशन करो एवरीवन। 0 to F. 0 to F. F. तो 0 to 9 नंबर्स होते हैं, 10 से हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, 10 से A Alphabetical होता till 15 दैट इज F, है ना। अगर F है इट मींस इन अ हाई स्टेट, मतलब वो ऑन स्टेट में है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो FF होती है, ठीक है। नाउ ओके, सो हमने जो सी प्रोग्रामिंग किया है कील एप्लीकेशन में, आपको क्या करोगे, सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करोगे हेक्स फाइल में। अब मुझे बताओ, मैंने तो यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया है ना, सी प्रोग्रामिंग में दिया हुआ था डेटा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया हेक्स फाइल में। जैसे ही आप उसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट करोगे, उसका फाइल साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ना, और कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, ब्रेक करके बेसिकली उसको बाइनरी में अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर आप उसको बाइनरी में स्टोर करोगे तो उसका जो फाइल साइज होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली छोटा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इन द सेम वे इन द हेक्स फाइल फॉर्मेट देयर आर 15 पॉसिबिलिटीज, है ना, 0 से लेकर के 9 तक, या तो फिर वो ABCDEF, दैट्स इट, 15 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये। और यही रीजन है कि जो फाइल, इसीलिए हम जो सी प्रोग्राम हमने की में किया उसको हम कंपाइल करते हैं इन द हेक्स फाइल, और हेक्स फाइल में जैसे ही कंपाइल करेंगे उसका जो फाइल साइज रहेगा वो एकदम स्मॉल हो जाएगा, वो विदिन 4 KB हो जाता है, 2 KB 1 KB, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 KB की फाइल अगर आप अपने फोन में ओपन करोगे वो ओपन भी नहीं होता है, इट मींस आपके फोन में वो सपोर्टेड नहीं है 2 KB फाइल। वेयर एज वही फाइल आप उसमें लोड करोगे कंट्रोलर में 8051 में, तो वो बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट करके आपको जो भी आपने प्रोग्राम किया उसको परफॉर्म करके दिखाएगा, है ना। बट आपके फोन में कंपैटिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके फोन में बहुत ही हाई लेवल की मेमोरीज है ना, आप डेटा वगैरह बहुत हाई लेवल पे स्टोर करते हो। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट। तो दिस इज अबाउट द 8051 कंट्रोलर। यू कैन सी दैट कि आप प्रोग्राम कहीं और कर रहे हो, कंपाइल कहीं और कर रहे हो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बूट लोडर में, मतलब 8051 का जो सिमुलेटर में लोड करके आप इसको रन कर रहे हो ना, मतलब 2-3 स्टेप में, अलग-अलग स्टेप में परफॉर्म कर रहे हो, फिर जाके आप एग्जीक्यूट करोगे तो कहीं जाकर के एक एलईडी क्या होगी, ग्लो होगी, इजंट इट। मतलब ये कितना ही, मतलब बहुत ज्यादा ओल्डर वर्जन, यू कैन सी दैट। बट अगर मैं आर्डिनो उनो की बात करूं, डू यू ऑल नो दैट टिंकरकैड, कभी सुना है टिंकरकैड? Yes, Yes, sir. yes, sir. टिंकरकैड एक Yes, sir. सिमुलेटर है जहां पर हम आर्डिनो के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ना। तो आप वहां देख सकते हो कि सिंपली हमने आर्डिनो लिया, एक एलईडी लिया, एक रजिस्टर लिया, कनेक्शन किया हमने। कनेक्शन करने के बाद से यू कैन ऑब्जर्व दैट कि आप प्रोग्रामिंग पार्ट राइट साइड में रहता है, प्रोग्राम आपने सी प्रोग्रामिंग में ही किया, हमने वहां पे कोई कंपाइलेशन यूज किया नहीं किया, हमने डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग करके और उसको हमने क्या किया, रन कर दिया। तो यू कैन सी दैट कि कितना एडवांस हमारे पास कंट्रोलर है अभी एज कंपेयर टू द 8051। आर्डिनो इज ऑब्वियसली एडवांस कंट्रोलर, और 8051 बहुत बड़ा सा दिखता है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा, इन द सेंस साइज में कैसे बता सकता हूं आपको, दैट इज समवेयर अराउंड एक टैब का साइज का रहेगा, और बहुत ही ऐसे हेवी होता है वो, और थिक होता है। ओके, क्लियर है एवरीवन इतना कि व्हाट इज द 8051 कंट्रोलर एंड आर्डिनो उनो। आर्डिनो उनो देखो बहुत ही अदर जो कंट्रोलर है उससे वो मतलब एडवांस वर्जन में, यू कैन से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्डिनो। नाउ वन मोर थिंग, देयर आर मेनी मोर टाइप्स ऑफ आर्डिनो, like I'm repeating again and again, that is Arduino Uno, because आपको जो मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो Arduino Uno पर ही परफॉर्म कराए जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में। Arduino Uno हो गया, Arduino Uno के अलावा और भी बहुत सारे Arduinos हैं, टाइप्स हैं, जैसे Arduino Mega हो गया, Arduino Leonardo हो गया, है ना। Arduino Uno में ये Uno ही है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज बाय द ब्रेन ऑफ द Arduino Uno, जो कि होता है आपका Atmega 328P। तो ब्रेन का नाम क्या है, दैट इज Atmega 328P। इन द सेम वे मेगा की बात करेंगे तो उसमें कोई दूसरा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे ब्रेन्स हैं, दैट इज Atmega 168 है, या फिर Atmega 8 है। देयर आर सो मेनी कंट्रोलर्स आर देयर। ये कंट्रोलर के बेसिस पे ही हम आर्डिनो को डिसाइड करते हैं कि वो उनो है, मेगा है, लियोनार्डो है ना। अभी आर्डिनो उनो का एक मिनी वर्जन आता है, दैट इज आर्डिनो नैनो, उसमें भी सेम होता है जो कंट्रोलर होता है, Atmega 328P। ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्डिनो उनो में जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, Atmega 328P। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है अबाउट द प्रोसेसर एंड द कंट्रोलर, अबाउट द मेमोरी, अबाउट द यूज, है ना। देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि प्रोसेसर जो है दैट इज कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन पे यूज होता है, कंट्रोलर आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो हाई पावर कंज्यूम करता है, वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर हार्डली 5 वोल्ट, गेटिंग और नॉट, 5 वोल्ट आपने उसको कनेक्ट किया ना, दैट इज फाइन। ध्यान रखना समवेयर इन बिटवीन, ये दोनों के इन बिटवीन में रास्पबेरी पाई लाई करता है, ना वो कंट्रोलर होता है और ना वो सही से पूरा प्रोसेसर होता है, मतलब दोनों का वो पार्ट है, इसलिए उसको क्या नाम दिया है, एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसमें हमने सारी चीजें क्या करी है, इंटीग्रेट करी है। अभी तो आर्डिनो में बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स आ गए, ऐसे फीचर्स आ गए हैं, है ना, बट स्टिल आर्डिनो जो है वो कंट्रोलर के अंदर ही आता है, माइक्रो कंट्रोलर ही होता है। कॉस्ट यू कैन सी दैट, जो प्रोसेसर होता है जनरली एक्सपेंसिव होता है, वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर 600 से 1200 के अंदर आ जाएगा आपको, है ना। एग्जांपल्स यू कैन सी दैट इंटेल राइजन स्नैपड्रैगन, आर्डिनो नोड एमसीएस 32। So clear everyone the difference between processor and a controller, sorry microcontroller. Yeah. So see that sensor जो मैंने डिस्कस किया था, है ना, क्या होता है सेंसर? A sensor acts like a sense organ, you can say that, of an embedded system. It detects changes in the environment and sends a signal to the controller. But जो official definition है इसका, I will repeat once again the official definition, ठीक है, ये तो for understanding part है। जो official definition है वो ये है कि sensor is a transducing device. If someone asks you in a viva question, देखो viva के questions कैसे होते हैं, एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द सेंसर, आप क्या रिस्पांस करते हो, टेंपरेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऐसे रिस्पांस नहीं करना होता है। सेंसर होता क्या है, आप वो रिस्पांस कीजिए बेटा, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। एग्जांपल जो आप दे रहे हो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेम गोस टू द 2 मार्क क्वेश्चंस, जो 2 मार्क के 1 लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि सेंसर होता क्या है, तो आप वो रिस्पांस कीजिए, एग्जांपल्स मत मेंशन कीजिए, ठीक है। तो सेंसर इज अ ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स इनटू सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मैंने क्या बोला, सेंसर इज अ ट्रांसड्यूसिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स इनटू सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Clear everyone this part?
नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मॉनिटरिंग डिवाइस। सेंसर को हम और क्या कहते हैं, इट इज अ मॉनिटरिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इट इज जस्ट अ मॉनिटरिंग डिवाइस। अगर आपने इतना ही मेंशन किया ना कि सेंसर इज अ मॉनिटरिंग डिवाइस, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट आपने ये एग्जांपल्स मेंशन किया ना कि टेंपरेचर सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक, इट सीम्स टू बी लाइक कुछ तो पता है, तो वाइवा में कुछ तो पता है कि मार्क्स नहीं मिलता है। ओके, so you can see that there are the examples of sensor: temperature, humidity, ultrasonic, fire, fingerprint, color, PIR, eye proximity, that is infrared. One more sensor is there. Have you heard about the 7-segment display? Anyone? किसी ने भी सुना है 7-segment display? No, sir. ओके, सो 7-segment डिस्प्ले, सबसे मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ ड्रॉ तो कर नहीं सकता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो अभी। 7-segment जो डिस्प्ले होता है, आपने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा ऑन द स्टेशन पे, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म होता है, हमारे स्टेशन होता है, वहां पे जो टाइमर शो होता है ना, कि 2 या फिर 2:30 हो रहा है या फिर 4:30 जो भी हो रहा है, तो टाइमर जो देखो, जो बड़ा एकदम शो होता है आपको, तो उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे ब्रैकेटिंग, जैसे 4 है, 4 में छोटे-छोटे ब्रैकेट्स के फॉर्म में आपको दिखेगा। ऐसा 4 जो है पूरा कंटीन्यूअसली नहीं दिखेगा आपको, वो ब्रैकेट्स के फॉर्म में रहता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्रैकेटिंग्स के फॉर्म में रहता है। Yes, sir. डिस्प्ले विजुअल में यू कैन सी दैट ये जो है, दिस इज द 7-segment डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आप कहां देख रहे होगे? प्लेटफॉर्म पे आपको जनरली जो टाइमर होता है बेसिकली आपको वहां पे वो दिख जाएगा। देखो सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइडेड है पूरा का पूरा, है ना। ये जो अलग-अलग सेगमेंट्स है, ये भी क्या है? एलईडीज है। क्या है? एलईडीज। और इसको आप नाम क्या देते हो? दैट इज 1 डिजिट 7-segment डिस्प्ले। क्या नाम है इसका? 1 डिजिट 7-segment डिस्प्ले। लेकिन जो स्टेशन पे लगा होता है, जो टाइमर होता है, वो क्या होता है? 4 डिजिट। क्या होता है वो? 4 डिजिट 7-segment डिस्प्ले। नाउ यू कैन सी दैट जो अलग-अलग सेगमेंट्स है, उसमें अलग-अलग बेसिकली जो सेगमेंट्स है यहाँ पर, उसके नेमिंग है यहाँ पर कि ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी। टोटल कितने सेगमेंट्स है? 7 है। एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट दिस सेगमेंट इज नोन एज अ 7-segment डिस्प्ले। नाउ टेल मी, अगर मुझे यहाँ पर 4 शो करना है, क्या शो करना है? 4, तो कौन सा सेगमेंट ऑन होना चाहिए? मुझे यहाँ पर 4 शो करना है। F, G, B and C. F, G, B, and C. करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इफ अगर मुझे यहाँ पे 8 शो करना है, तो 8 8 के लिए सभी लगेंगे, G को छोड़ के सारे। ऑन स्टेट। नहीं नहीं, 8 शो करना था आपको, सारा ऑन स्टेट रखना होगा। अगर जी आपने ऑफ स्टेट में रखा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जी अगर ऑफ स्टेट में गया तो क्या हो जाएगा? वो दैट इज 0। 0. क्लियर है एवरीवन? Yes. Clear है? What is the 7-segment display? Okay, you can see that there is a number as well here. You can see that for the 0, 1, 2, 3, जो ग्रीन, जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है, that is for the on state. ये ऐसे काम करता है। ओके, so we have done with the 7-segment display as well. Actuators देखो मैंने डिस्कस किया है ना, that is an actuator performs the physical work decided by the controller. इसका भी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? Actuator is also a transducing device which converts electrical signals into some physical motion, है ना। तो एक्चुएटर भी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल स्टेपर मोटर है ना, एग्जांपल के तौर पे आप बहुत कुछ ले सकते हो। यहाँ तो इसने आपको रिलेटेड टू द एम्बेडेड डिवाइसेस बस एग्जांपल दिया, जैसे एंटी लॉक ब्रेक्स मैंने दिया था आपको एग्जांपल, है ना। एयर बैग जो होता है कार में, दैट इज आल्सो एक्चुएटर। एक्सेलरेटर हो गया, जहां पर भी कंट्रोलिंग पार्ट परफॉर्म हो रहा है, वो क्या हो गया आपका? दैट इज एक्चुएटर। So we have done with the electronics. I'm mentioning once again. We have done with the electronics, types of electronics, digital and analog. Then we have done with the embedded system, isn't it? What is the embedded system? It is the combination of software and hardware. Okay, where software is embedded into hardware, which leads to a specific task. Then what is the difference between embedded system and a general purpose system? है ना, ये क्या ना, जनरल पर्पस मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, जहां जनरल पर्पस क्या होता है? मल्टीटास्किंग नेचर होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, फिर सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करेगा, दैट्स इट। उसके बाद से हमने किया दैट इज प्रोसेसर क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेसर? देन व्हाट इज द कंट्रोलर? देन व्हाट इज द सेंसर? सेंसर में कौन से सेंसर्स है हमने देखा है ना। देन वी हैव डन विद द एक्चुएटर्स। ये टॉपिक सारे क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके, So, Yes, sir. मेंशन करो। सर अगर मैंने रास्पबेरी पाई यूज किया है कोई इलेक्ट्रॉनिक को यूज करने के लिए, तो मुझे कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, रास्पबेरी पाई इटसेल्फ इज अ कंट्रोलर एज वेल, उसके अंदर ही कंट्रोलर होता है। और उसके साथ प्रोसेसर की भी जरूरत नहीं, लाइक रास्पबेरी पाई कैन परफॉर्म रास्पबेरी बोथ? पाई, ओके, आई एम कमिंग ऑन द रास्पबेरी पाई। ओके, आई हैवंट स्टार्टेड विद द रास्पबेरी पाई। मैं रास्पबेरी पाई को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैंने जस्ट अभी ओपन किया है ना। सो रास्पबेरी पाई जो होता है वो एक होता है, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस आफ्टर दिस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें से या फिर कुछ रह गया, यू कैन आस्क। सो रास्पबेरी पाई जो होता है, इट इज अ पाम हैंड सीपीयू। क्या होता है? इसको हम कहते हैं पाम हैंड सीपीयू। रास्पबेरी पाई इज अ पाम हैंड सीपीयू, यू कैन से दैट, और अ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। इसको हम ये भी नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। देखो यहाँ से हम जो IoT है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द एम्बेडेड सिस्टम। अब जो हम पॉइंट यहाँ से जो हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर जो एम्बेडेड डिवाइसेस है, वो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हो रहा है टुवर्ड्स द IoT। ठीक है, यही तो हमारा प्रोग्राम है, दैट इज ब्रिजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू द IoT। तो जो रास्पबेरी पाई होता है, रास्पबेरी पाई इज अ पाम हैंड सीपीयू, ओके, और अ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यू कैन से दैट। पाम हैंड सीपीयू कहता है क्योंकि जो आपका जो पाम है ना, आपका जो हाथ है, उसमें फिट हो जाता है प्रॉपर्ली। ठीक है, अभी रास्पबेरी पाई में जो प्रोसेसर होता है दैट इज आर्म बेस्ड प्रोसेसर, ARM। अब ARM क्या होता है? मेंशन कर लो एवरीवन। ARM का फुल फॉर्म है एडवांस्ड, और R से रिस्क, RISC, रिस्क मतलब जो RISK वाला होता है वो नहीं, RISC फॉर कैट, आर्म रिस्क, सॉरी एडवांस रिस्क मशीन, है ना। अभी जो रिस्क है उसका फुल फॉर्म है दैट इज
क्या होता है इसका फुल फॉर्म बताओ, RISC का फुल फॉर्म मीनिंग Reduced instruction set computing. रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसके अलावा हमारे पास एक और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। तो रिड्यूस में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होता है बेसिकली जो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग पार्ट एग्जीक्यूट होता है, छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले CISC में जो प्रोग्रामिंग साइज होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी के लिए, ठीक है। आर्म बेसिकली क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। एडवांस रिस्क मशीन। नाउ यहाँ पर देखो अभी और क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, HDMI केबल चाहिए आपको, है ना, फिर USB चाहिए, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ हो गया। आपके रास्पबेरी पाई पर ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी के लिए एथरनेट पोर्ट भी दिया होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रास्पबेरी पाई, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है। अब इसमें लैंग्वेजेस कौन से सपोर्ट करते हैं, मैंने आर्डिनो में बताया कि आपको C या फिर C++ सब कर सकते हो, लेकिन रास्पबेरी पाई में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, C भी है, C++ भी है, रूबी है, जावा है, पाइथन है। दीज आर द लैंग्वेजेस बेसिकली यू कैन परफॉर्म इन द रास्पबेरी पाई। नाउ रास्पबेरी पाई में जो GPIO पिन्स होते हैं, देयर आर नॉट GPIO, देयर आर 40 पिन्स। रास्पबेरी पाई में जो पिन्स होते हैं कितने होते हैं, 4040 होते हैं। नाउ आउट ऑफ 40 देयर इज 26 GPIO पिन्स। कितने होते हैं, 26 GPIO पिन्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्डिनो में बहुत ही सिंपली वहां मेंशन होता है कि दिस इज A0 A1 A2 A3 A4 A5, बट रास्पबेरी पाई में मेंशन करना कॉम्प्लिकेटेड है कि 0 से लेकर के 4040 तक आपको पिन नंबर मेंशन करने हैं और कौन से पिन का फंक्शन क्या है, और उस पिन में से GPIO पिन्स भी हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हैं, पावर सप्लाई भी है, ग्राउंड भी है ना। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पिन्स, जो 2 और 4 होता है, बेसिक पिन पहले याद करना होता है कि पावर सप्लाई और ग्राउंड, क्योंकि आपको कोई भी अगर डिवाइस कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उसको पावर सप्लाई और ग्राउंड से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। वो एक LED से लेकर के कोई भी कंपोनेंट रहने दो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया था अल्ट्रासोनिक सेंसर का, कि उसके अंदर क्या होता है, VCC होता है, ट्रिगर होता है, इको होता है और ग्राउंड होता है। तो ट्रिगर और इको ऑब्वियसली कहीं और पिन पे कनेक्ट होंगे, लेकिन VCC और ग्राउंड तो आपको पता है कहां कनेक्ट होंगे, VCC पावर सप्लाई पे जाएगा और जो ग्राउंड है अल्ट्रासोनिक सेंसर का वो ग्राउंड पर जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जब आप पिन लर्न करते हो, है ना, विजुअलाइज करते हो, तो सबसे पहले आपको पावर सप्लाई और ग्राउंड जो विजुअलाइज करना होता है। तो फिर रास्पबेरी पाई में जो पावर सप्लाई होता है ना, 5 वोल्ट पावर सप्लाई जो होता है दैट इज 2,4, जो इवन नंबर है। मैं ऐसे बच्चों को कहता हूं याद करने के लिए, जो 2,4 है वो क्या है, 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, और जो 1,17 है ऑड नंबर 1,17 वो है 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई। ओके, इसके अलावा 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34 एंड 39 ये सारे क्या है, ग्राउंड्स है। ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ग्राउंड्स है। और जो बच गए उसमें GPIO पिन्स भी आते हैं ना। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं एक एक आपको GPIO पिन भी धीरे धीरे याद होता जाता है। तो व्हाट इज द GPIO, एनीवन फुल फॉर्म? General purpose input output. जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। गुड। सो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। नाउ रास्पबेरी पाई की स्पेशलिटी ये है बेसिकली कि आपको इसमें एक्सटर्नली मेमोरी कार्ड जो स्टोरेज होता है आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन रास्पबेरी पाई? कौन सा OS हम लोग यूज करते हैं? Which OS we are using in Raspberry Pi, that is Raspbian ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज में क्या है, सॉरी आपके कंप्यूटर में बेसिकली क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर मैक OS हो गया, ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन द सेम वे रास्पबेरी पाई में लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और खुद का इसका उसका नाम है रास्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है बताओ, ओपन सोर्स है कि क्लोज सोर्स है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है। व्हाट अबाउट द मैक OS? मैक OS इज द क्लोज सोर्स। क्लोज्ड। करेक्ट। सो वी कैन सी हियर कि जो रास्पबेरी पाई है, यहाँ पर प्रोसेसर भी है ना, कंट्रोलर भी है, मेमोरीज भी यहाँ पे एड ऑन है, GPIO पिन्स भी है, राइट। HDMI केबल को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे माइक्रो HDMI भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, जहाँ से माइक्रो से मैक्रो, है ना। आपके जो मॉनिटर में वो क्या है, मैक्रो है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। जब आप रास्पबेरी पाई यूज करोगे तो आप आपका जो PC है वो यूज ही नहीं करते हो। गॉट एवरीवन? क्योंकि रास्पबेरी पाई क्या है, इटसेल्फ इज अ CPU। रास्पबेरी पाई इटसेल्फ अ CPU। मैं उसको पाम हैंड CPU अगर कह रहा हूं तो आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लो कि पाम हैंड मतलब केवल पाम में फिट हो रहा है। मैं पाम हैंड के पास उसको और क्या कह रहा हूं वो भी ध्यान से सुनो, दैट इज CPU, है ना। तो जब हम रास्पबेरी पाई यूज करते हैं किट, तो हम ड्यूरिंग दैट टाइम आप CPU अपना नहीं यूज करते हो, आप रास्पबेरी पाई यूज करते हो। रास्पबेरी पाई के साथ में आपको मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल होता है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए वहां पे USB पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद से अभी तो रास्पबेरी पाई में अपडेटेड जो वर्जन है उसमें Pi 3 से लेकर Pi 4 वगैरह में Pi 5 भी आ चुका है मार्केट में। वहां पर आपको वाईफाई मॉड्यूल मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। rather than that वहां पे बेसिकली एथरनेट पोर्ट भी दिया रहता है, ठीक है, आप एथरनेट पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो सारे पोर्ट्स उसके ऊपर अवेलेबल है ना। तो देखो ये कुछ आर्डिनो के जैसा ही है, पर ये आर्डिनो नहीं है, बिकॉज ये मल्टीटास्किंग इन नेचर है। और क्योंकि ये जो रास्पबेरी पाई है, क्योंकि ये बेसिकली मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं है ना, यू कैन से दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसको हम और क्या कहते हैं, क्या हम इसको नाम क्या दिया, SOC, सिस्टम ऑन चिप। क्लियर है एवरीवन अभी कि व्हाट इज द रास्पबेरी पाई? देखो जिसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपको खुद से थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। पिन कॉन्फ़िगरेशन है ना, लाइक 40 पिन है, कौन से पावर सप्लाई है, कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से GPIO पिन है, यू कैन मेंशन दैट। कॉमन यूजर यू कैन सी दैट। देखो अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सो अट्रैक्टिव इन नेचर, रोबोटिक्स, AIML इज देयर, रोबोटिक्स, IoT, स्मार्ट होम सिस्टम। व्हाट इज द स्मार्ट होम सिस्टम? एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, आप समझ जाओ एग्जांपल से, मैं बता रहा हूं आपको। अभी देखो यहाँ पे एज कंप्यूटिंग का भी रोल आता है ना। एज का मतलब क्या होता है, कॉर्नर। बस ऐसे ध्यान रखो, टॉपिक अपने आप समझ में आएगा, टॉपिक को कनेक्ट करना सीखो। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट होम सिस्टम, सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज देयर एंड मॉर्निंग रूटीन वो एक फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो बाथ के लिए गया एंड गीजर में पहले से पानी गर्म था, है ना। अब जो गीजर का नोड है वो कॉफी वेंडिंग मशीन के नोड से और मिरर के नोड से कनेक्टेड है। मैं 3 यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस ले रहा हूँ, स्मार्ट गीजर ले रहा हूँ मैं। देखो मैंने अगर स्मार्ट कह दिया ना कोई भी डिवाइस को, तो इट मींस उसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स, जैसे वॉच हो गया। नॉर्मल अगर मैंने वॉच बोला तो वो क्या है, एनालॉग वॉच है ना।
बट अगर मैंने इसको स्मार्ट वॉच बोल दिया, इट मींस वो बहुत कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल वो आपका ब्लड प्रेशर क्या है वो मेजर करेगा, देन आपके स्टेप्स कितने रहे पूरे दिन में वो मेजर करेगा, है ना। सो ओवरऑल जो मेजर करेगा, और स्मार्ट है तो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर भी करेगा, उसमें कनेक्टिविटी है। सो यू कैन ट्रांसफर दैट डेटा इन योर मोबाइल फोन एज वेल। और डेटा जहां भी ट्रांसफर हुआ है ना, वो डिवाइस कौन सा हो गया, दैट इज IoT डिवाइस। डेटा जैसे ट्रांसफर होगा देन इट विल बिकम एन IoT डिवाइस। मतलब जहां भी कनेक्टिविटी आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ही प्लस कनेक्टिविटी होगा, इसलिए हम IoT का इक्वेशन कहते हैं। यू कैन राइट इट डाउन एज वेल कि IoT का इक्वेशन होता है क्या, मैं मेंशन कर रहा हूं फिर से। IoT में जो इक्वेशन है, सबसे पहला आता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद से प्लस के बाद से सेंसर है, एक्टिवेटर है, कंट्रोलर है, और प्लस इंटरनेट है। करेक्ट एवरीवन। फिजिकल ऑब्जेक्ट अभी क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CPU है, CPU में जो उसके बाहर जो केस है, उसका CPU का जो केस है, अगर वो केस नहीं रहेगा तब तो फिर आप ऐसे पैर मारते हो CPU, तो फिर वो 2-4 दिन में फूट जाना है ना। तो CPU का जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। इन द सेम बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया कि सर कल तो रन हो रहा था, आज नहीं रन हो रहा है। बेटा उसका केस, उसका जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसको डिजाइन दो ना, है ना। आप एक हाथ में लेके आर्डिनो और एक हाथ में लेके ब्रेडबोर्ड लेके चले आओगे कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट मेरा हो गया है, तो बेटा वो तो खराब होने का चांसेस में ज्यादा है, खराब हो सकता है, आपका हाथ तो स्टेबल रहने वाला है नहीं। गेटिंग और नॉट। तो जो केस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है सेंसर, एक्टिवेटर, कंट्रोलर प्लस इंटरनेट। राइट एवरीवन। जैसे इंटरनेट आया वहां पर वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, IoT डिवाइस हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने स्मार्ट होम का एग्जांपल लिया था। एग्जांपल मैंने क्या कंसीडर किया था, दैट इज एक गीजर लिया है मैंने, एक कॉफी वेंडिंग मशीन लिया है जो स्मार्ट कॉफी वेंडिंग मशीन है, और एक स्मार्ट मिरर है, ठीक है। आपके पास स्मार्ट कार भी है, ओके। ये 4 चीजें हो गई, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भी। ये चारों का जो एज है ना, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इसका जो एज है वो कनेक्टेड है, और वो किसके अंडर में आएगा, एज कंप्यूटिंग, जो कि एक फ्रेश टॉपिक होता है, अलग से होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा। सो बेसिकली अभी यहाँ पर जो गीजर है उसका जो एज है वो कॉफी वेंडिंग मशीन से कनेक्टेड है। इट मीन जैसे आप नहाने जाओगे, आपका नहा के जैसे ही होगा, कॉफी प्रिपेयर हो जाएगी टाइमली, वो ऑटोमेटिकली कॉफी को प्रिपेयर कर देगा, क्योंकि वो कनेक्टेड डिवाइस है, डिवाइस सारे कनेक्टेड है ना। कॉफी जैसे प्रिपेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद से आप कॉफी लेकर के आप मिरर के सामने का है ना, मिरर क्या है, स्मार्ट मिरर है। मींस वहां पे वो क्या शो करेगा, कुछ तो स्मार्ट उसके अंदर फंक्शन होंगे ना इस मिरर के अंदर। तो मिरर शो करेगा आपको कि जो एरिया में जो ट्रैफिक है, फिर आपका जो शेड्यूल है आज का, है ना, क्या रूटीन रहने वाला है ऑफिस में, या फिर कौन से मीटिंग्स वगैरह है, वहां पे शो होगा। फिर शॉर्टेड रूट्स, कौन से रूट्स जो है कौन से हैं ट्रैवलिंग के लिए, है ना, वो आपकी कार को ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। कार का भी जो कार भी स्मार्ट डिवाइस है जो कि मिरर से कनेक्टेड है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आप ड्राइव कर सकते हो। अब तो अनमैन्ड कार भी आ गया है एकदम, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे सोच के देखो। स्मार्ट कार में ऐसे भी हो सकता है कि आप कार में बस बैठ गया, कार ऑटोमेटिकली ड्राइव किया और ऑफिस आप पहुंच गए। तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं ना, जिसका हम अंडर IoT डिवाइस, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन आप देखो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे, ये टाइमली इवॉल्व होंगे। इसमें जो सॉफ्टवेयर तो इवॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है, जनरली क्या करते हैं, अरे विंडोज 10 था 11 आ गया, आप इनेबल डाल देते तो फटाक से। लेकिन अगर हार्डवेयर इवॉल्व होगा तो क्या करोगे आप, आपको बाय करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली होगा। यही रीजन है कि जो हार्डवेयर रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होती हैं, या फिर हार्डवेयर रिलेटेड जो मार्केट होता है, वो बहुत ही स्लो ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द रास्पबेरी पाई। You can see that the difference between Raspberry Pi सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, Arduino माइक्रोकंट्रोलर होता है। Raspberry Pi runs Linux based ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा होता है इसके अंदर, दैट इज Raspbian ऑपरेटिंग सिस्टम। Arduino में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आप CPU में या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करके CPU मतलब विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही यूज करते हो। Raspberry Pi runs मल्टीपल प्रोग्राम्स, Arduino one main program at a time, better for AI networking and multimedia in the Raspberry Pi. Arduino that is better for sensor, motor, real time controller. Then Raspberry Pi is costly, that is around 10,000 rupees, ध्यान रखना everyone, whereas Arduino lower cost and low power. So the quick revision is here, you can see that electronics, analog, digital, ये हमने किया, right? Embedded system क्या होती है, हमने किया। Then we have done with the processor as well. Then what is the sensor, what is the actuator, and what is the Raspberry Pi. These all things we have done today. So that's all. Anybody have any doubt, anything you want to ask, you can ask. Just a minute. All right. So I will try for the next session, I will mostly try to come to a college if there is any, okay, then we'll see to it कि offline क्या कर सकते हैं, है ना। Most welcome. Yes, Siddesh, am I audible to you? Yes, sir. So I have done with the session. Thank you very much, sir, for such an insightful and engaging session. Your explanation of how electronics serves as the foundation of IoT, along with the practical examples, industry sites, career guidance, has truly been valuable. We sincerely appreciate you taking the time to share your knowledge and experience with all of us. As a small token of appreciation and gratitude, on the behalf of IEEE SIESGST and SIS Grand School of Technology, we would like to present you with a certificate of appreciation. While this certificate is only a small gesture, it reflects our sincere respect and gratitude for your valuable contribution. Once again, thank you, sir, for your time, guidance, and for making this webinar a memorable learning experience. I would also like to extend my sincere thanks to all the participants for joining today's webinar and making it a success. We hope you found this session informative and gained valuable insights into the world of electronics and IoT. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you, Siddesh. Thank you for this great opportunity. Thank you so much. Thank you, sir.